you? I hope all of you are safe. Today we are going to start with first chapter of physics, that is light, reflection and refraction. Basically we have to study two basic concepts in this, reflection and refraction. But I will be dividing this chapter into three parts. First, light. I will be talking some basics about light, which we must know. We must know the terms which I will be using time and again in this chapter. बार बार जिन टर्म्स को मैं यूज करूंगा, पहले मैं उन टर्म्स को एक्सप्लेन करूंगा. फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर which I call as light. Then I will discuss two phenomena, reflection and refraction, in different parts. In today's video, we are going to learn light and some basic terms related to it. So first of all, what is light? Light बताने से पहले मैं एक सिंपल सी बात पूछता हूँ आपसे. कार को चलाने के लिए क्या चाहिए हमें? पेट्रोल. घर में मिक्सी, वॉशिंग मशीन चलाने है उसके लिए क्या चाहिए? इलेक्ट्रिसिटी. यानी कोई भी चीज़ को वर्क करने के लिए उसके लिए क्या चाहिए होती है? एनर्जी. इसी तरह से हमारी बॉडी का भी एक पार्ट है जिसको बोलते हैं आइज. इस आइज को दिखाने के लिए क्या चाहिए? लाइट. तो लाइट क्या है? इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच एनेबल्स अस टू सी. अगर रात का अंधेरा वो बिल्कुल क्या इतनी क्लियरली दिखता है जितना हमें लाइट में दिखता है? नहीं दिखता. लेकिन जब लाइट होती है, सन का टाइम होता है, डे टाइम होता है, उस टाइम हमें किसी एक्स्ट्रा लाइट की जरूरत नहीं पड़ती है, आसानी से दिखता है. लेकिन मान लो एक पर्सन, आई शुड नॉट से ब्लाइंड पर्सन, जिसके पास आँख उस लाइट तो है लेकिन देख नहीं पाता क्योंकि आँख नहीं काम करती, आँख में प्रॉब्लम है. यानी आँख एक क्या है? इंस्ट्रूमेंट है, डिवाइस है, जो किससे काम कर रहा है? एनर्जी से. और एनर्जी क्या है? लाइट. सो लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच एनेबल्स अस टू सी. Number one. Second, there have been so many controversies over the nature of light. Many times people tell that it is a wave in nature, it is particulate in nature. But according to modern concept, light can be considered of dual nature. Dual nature माने whenever it is emitted or absorbed, it behaves like photon. Photon means particle of energy. Photon means particle of energy. आप कोई भी सोर्स ऑफ लाइट देखोगे, कोई भी, चाहे बल्ब है, ट्यूब है, CFL है, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, उसके पास जाकर देखोगे तो उसको टच करोगे तो कुछ ना कुछ हीट जरूर फील होगी. बट मान लो बल्ब जल रहा है, ट्यूब जल रही है, क्या मुझे उसकी रास्ते में गर्मी महसूस हो रही है? नो. सो व्हेनेवर लाइट इज एमिटेड और एब्जॉर्ब एट ए पर्टिकुलर पॉइंट, दैट ए वेव्स लाइक इन फॉर्म ऑफ photons. Photons means particle of energy. But whenever light travels, it travels in form of a wave. Wave के बारे में आपने 9th क्लास में साउंड चैप्टर में बहुत डिटेल से पढ़ा. So whenever it travels in form of a wave, and this wave is which wave? Electromagnetic wave, which do not require any material medium for its propagation. So now up to this point of time, we should know light is a form of energy which enables us to see, and it has dual nature. Photon means particle of energy. Whenever it is emitted or absorbed, it is photon. Whenever it is traveling, it is passing from one place to another place, it is moving from one place to another place, it behaves like wave, and this is an electromagnetic wave which do not require a material medium for its propagation. Now we will understand few basic terms related to light. What are those basic terms? Let us say one by one we will go with. First of all, source of light. What is source of light? Any substance, any mechanism which is able to convert one form of energy into light energy, or is able to reflect light on falling on it, is able to send back light falling on it, is called source of light. So source of light is what? Any substance, any object, any mechanism, any machinery which is able to convert one form of energy into light energy, any form of energy. For example, and this source of light we can divide into two types.
luminous and non-luminous. Up to this level, luminous is what? Which has its own mechanism to convert one form of energy into light energy. For example, sun में क्या है? Electrical bulb, tubes, CFLs, for that matter any source of light, जिसके अंदर ऐसा मैकेनिज्म हो कि एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है। जैसे सन है, सन के अंदर क्या हो रहा है? न्यूक्लियर एनर्जी इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू लाइट एनर्जी। इलेक्ट्रिकल बल्ब्स या इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस के अंदर क्या हो रहा है? हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं एंड वी आर गेटिंग लाइट एनर्जी। सो these are luminous source of light. For example, candle. But what is non-luminous source of light? Which has no mechanism of conversion of light and any form of energy to light energy, but can reflect the light falling on it, can enable us to see. So that is called non-luminous. Non-luminous source of light क्या है? अभी मैं आपके सामने कर रहा हूँ, मैं भी एक source of light हूँ. This pen is source of light. Anything in this room, table, pen, chair, book, notebook, you, me, anything which you are able to see in this room, stars, moon, on which light falls and it gets reflected back. That is called non-luminous source of light. I hope this is clear. Now, another term which we will be using time and again, that is called medium. Medium. What is medium? Anything through which light passes or tends to do so. That is called medium. Anything through which light passes or tends to do so is called medium. Mediums are of three types. Number one, transparent medium. Transparent medium क्या होता है? Through which light can pass completely. For example, air, water. These are what? Transparent mediums. Second is translucent. Translucent medium क्या होते हैं? Through which light can pass partially. जैसे एक पेपर है, rinsed it with oil, उसमें से कुछ ना कुछ दिखेगा दूसरी तरफ से. Tinted glasses. आपकी कार में कुछ ग्लासेस होते हैं जिसके अंदर से आप बाहर का देख सकते हैं, लेकिन बाहर से अंदर का दिखता है. आपके घरों में भी होता है सब में. Tinted glass, paper is with oil, blotting paper. ठीक है? These are examples of translucent material. Third one is opaque medium. Opaque medium क्या होता है? The medium through which light cannot pass at all. For example, wood, iron, our body, wall, concrete, through which light cannot pass at all. These are called what? Opaque mediums. Now we have to start with very important terms related to light. The terms are what? Number one, ray of light. Before I tell you ray of light, let me tell you light always travels in a straight line. लाइट की जो हमेशा प्रोपेगेशन का मेथड है, दैट ऑलवेज ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन. मतलब आपको किसी भी कॉर्नर से लाइट आ रही है, कहीं से भी लाइट आ रही है, तो इट विल ऑलवेज ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन. नाउ व्हाट इज रे ऑफ लाइट? इट इज ए वे, इट इज द मेथड टू रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट. It is a ray is what? Simply a straight line path to represent propagation of light. मतलब देसी भाषा में बोलूँ तो ये जो एरो लगा हुआ है, एरो के दो पार्ट होते हैं. वन इज पॉइंटिंग. पॉइंटिंग का मतलब जिधर लाइट जा रही है, और ये जो ओपन साइड है इसका मतलब सोर्स इस तरफ है. यानी ये जो रे ऑफ लाइट है, बल्ब इधर लगा हुआ है और जा इधर रही है. अगर मान लो मैं रे ऑफ लाइट ऐसे बनाता हूँ तो लाइट ऊपर से नीचे आ रही है, नीचे से ऊपर बना रहा हूँ तो लाइट नीचे से ऊपर जा रही है. मतलब this is pointing towards the direction of propagation, whereas open side is representing the direction of source. जहाँ पर source present है. Clear to all of you what is ray of light? Now we have to understand some more basic terms related to it.
What are the basic terms related to it? First thing is ray, I think may be clear. Second is beam, collection of large number of rays. अभी जब किसी भी पॉइंटेड जो रे होती है, आपको फॉर एग्जांपल आपका जो आप लोग कई बार बचपन में लेजर लाइट यूज करते होंगे क्लास में टीचर्स को तंग करने के लिए भी, उस लेजर लाइट में आपको क्या लगता है कि खाली एक रे है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज है. व्हेन लार्ज नंबर ऑफ रेज आर ट्रैवलिंग टुगेदर दैट इज कॉल्ड बीम. अब बीम को हम पेपर में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, बीम क्योंकि बहुत सारी रेज का कॉम्बिनेशन है, तो उसके लिए हम एक बेटर टर्म यूज करते हैं, इसको बोलते हैं पेंसिल ऑफ लाइट. फर्क क्या है बीम और पेंसिल में, और सिमिलैरिटी क्या है? दोनों सिमिलैरिटी है, दोनों बोथ आर प्रोडक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ रेज, बट दिस कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड ऑन पेपर, दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन पेपर. This we can show its diagram. For example, if I show this is what pencil of light. With pencil of light in which all rays are parallel. There is another key rays of light also, beams of pencils of light also. This is called convergent. They are coming from different directions but meeting at one point. In the morning you come from different directions from your homes but converge at one point in the class. So similarly these rays are coming from different parts but meeting at one point. This is called convergent light, convergent pencil of light. For example, it is source and from this source light are going, rays are going in different directions. इसको क्या बोलते हैं? डाइवर्जेंट. कौन कौन सी? डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट, pencil of light. Yet convert parallel, sorry. ये तीनों क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं? पेंसिल्स ऑफ लाइट. लेकिन इस चैप्टर के अंदर या इन जनरल वी कैन यूज दिस टर्म्स इंटरचेंजेबली बिकॉज बेसिक एसेंस ऑफ बोथ ऑफ देम इज सेम, बेसिक मीनिंग ऑफ बोथ ऑफ देम इज सेम. So parallel in which all rays are parallel, convergent when coming from different direction meet at one point. Starting from one point, जैसे स्कूल में छुट्टी होती है, ऑफ होता है, तो आप क्या होता है अपने क्लास से डिफरेंट डायरेक्शन में अपने घरों को चले जाते हो. सो दैट इज व्हाट डाइवर्जेंट. यू डाइवर्ज एट दैट टाइम. सिमिलरली दिस इज कॉल्ड डाइवर्जेंट पेंसिल ऑफ लाइट. वी कैन यूज दिस टर्म्स along with pencil. We can use this term as beam of light also. Any doubt to this? अब रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन समझने से पहले हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हम पढ़ेंगे, सबसे पहले कुछ बेसिक चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए. रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है? रिफ्लेक्शन क्या होता है? मैं फॉर एग्जांपल एक बॉल ली, बॉल को दीवार में मारी, वापस आ गई, ऐसे बॉल एज रिफ्लेक्टेड बैक. कोई चीज नीचे फेंकी, ऊपर उछल के वापस आ गई, दिस थिंग हैज रिफ्लेक्टेड बैक. Similarly, when light falls on some surface and comes back, when light falls on some surface and comes back, that is called reflection of light. So what is reflection of light? It is defined as bouncing back of light. It is defined as bouncing back of light in the same medium after striking some surface. Is it clear to all of you? Reflection is clear. Reflection के बारे में और डिटेल से पढ़ने से पहले एक सिंपल सी बात है, जब भी हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस रिप्रेजेंट करेंगे उसके नीचे हम ऐसे, या इन सम बुक्स आपको एक लाइन नीचे यहाँ डार्क लाइन मिलेगी ऐसे. दिस इज कॉल्ड नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस. दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस. This is called reflecting surface. This is called non-reflecting surface. बड़े देसी भाषा में बोलूं तो अगर मान लो मेरे पास मिरर है, मिरर में मुझे इधर अपनी शक्ल देखनी है, जहां मैं अपनी शक्ल देख पा रहा हूं मिरर में, वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, वो मैं इससे रिप्रेजेंट करूं, बस स्मूथ लाइन से. और ये टिल्टेड कॉम्बी लाइन से मैं क्या रिप्रेजेंट कर रहा हूं? नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस. यानी बैक ऑफ द मिरर इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस. यानी जो बैक होती है रिफ्लेक्टिंग सरफेस की, जहाँ पर लाइट फॉल नहीं कर रही है,
उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इन स्मॉल tilted lines. Or we can do it alternatively by this method also. But I'll be using it most of the time this method only. Is it clear? Reflect, non-reflecting surface and reflecting surface. Any doubt up to this? Now before we proceed further, now we'll understand some more terms related to it. Reflecting surface and non-reflecting surface is clear. For example, we have this reflecting surface and this is the ray which is traveling. मैंने पहले कहा कि लाइट यहां से आ रही है. Light which is traveling towards the reflecting surface, इसको कौन सी रे बोलते हैं? इंसिडेंट रे. कौन सी रे? इंसिडेंट रे. After reflection, when it goes, this is called reflected ray. कौन सी रे? रिफ्लेक्टेड रे. यानी द रे ऑफ लाइट विच इज मूविंग टुवर्ड्स द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, उसको इंसिडेंट रे, और जो वापस जाती है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे. एंड वन थिंग, इसके ऊपर एक 90 डिग्री के एंगल से लाइन आते हैं, इसको बोलते हैं नॉर्मल. क्या बोलते हैं इसको? नॉर्मल. नॉर्मल इज व्हाट? सिंपली इमेजिनरी लाइन which is making 90 degree angle with the reflecting surface. Any doubt to this? So incident ray is clear, reflected ray is clear, normal is clear. Now angle between this incident ray and normal is known as angle of incidence, and this angle is known as angle of reflection. Angle of reflection is what? Angle between reflected ray and normal. So angle between incident ray and reflected ray is known as incident angle of incidence, and this is known as angle of reflection. Sorry. Now before we move to the laws of reflection, one thing should be very clear. एक रिफ्लेक्शन को इसको बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन, and another is called diffuse reflection. When surface is absolutely plain, then all incident rays which are parallel, for example these are the parallel incident rays, after reflection they are also parallel. This kind of reflection is called regular reflection. And the incident rays which after reflection are not parallel, that is called diffuse reflection. That is called diffuse reflection. Any doubt up to this? अब दोनों में से कौन सा इंपॉर्टेंट है? अगर डे टू डे लाइफ की बात करें तो दिस इज मोर इंपॉर्टेंट. व्हाई? इसी रिफ्लेक्शन की वजह से रूम में रखा हुआ कोई भी चीज, किसी भी कॉर्नर में रखी हुई चीज हमें दिख सकती है, किसी भी कॉर्नर में रखी हुई. इट इज बिकॉज ऑफ डिफ्यूज रिफ्लेक्शन. आपके मेरे लास्ट बेंच के नीचे में कोई चीज पड़ी और मुझे यहां से दिख रही है, इट इज बिकॉज ऑफ डिफ्यूज रिफ्लेक्शन. आपके घर में अलग अलग कॉर्नर से रखी हुई चीजें आपको दिख रही है एक जगह से बैठ के, दैट इज बिकॉज ऑफ डिफ्यूज रिफ्लेक्शन. सो डे टू डे लाइफ में ये इंपॉर्टेंट है. अबाउट दिस विल लर्न इन हायर क्लासेस इन डिटेल, बट इन प्रेजेंट क्लास we are going to learn regular reflection, that is in case of mirrors. Up to this clear to you? Now next very important topic is reflection of light. कि laws of reflection. वैसे कोई नई चीज नहीं है आपके लिए, क्योंकि ऑलरेडी इसको आप पढ़ चुके हैं in your junior classes. I am more than sure. For example, first law is what? Incident ray, reflected ray and normal all lie in same plane. Incident ray, reflected ray and normal lie in same plane. What is the meaning? For example, this one pen is representing what? Incident ray. Another is representing reflected ray. और ये नॉर्मल है, सारे एक ही प्लेन में है. ये नहीं कभी कोई ऐसे बाहर आ रहा होगा इसके अंदर, या अंदर जा रहा होगा, या ये बाहर आ रहा होगा.
all of will then lie in same plane. फॉर एग्जाम्पल अभी मेरी सारी फिंगर्स एक ही प्लेन में, लेकिन अगर मैं ऊपर 2 3 नीचे ऊपर करता हूँ ये अलग अलग प्लेन्स में, तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल आर इन प्लेन, वन प्लेन. नंबर 2, angle of incidence is always equal to angle of reflection. Angle of incidence is always equal to angle of reflection. Any doubt up to this? So let us move further. So there are 2 laws. First is incident ray, reflected ray and normal all are in same plane, and angle of incidence is always equal to angle of reflection. Now we have to learn some more basic terms related to reflection. सबसे पहले हम बार बार वर्ड यूज करेंगे ऑब्जेक्ट. फिजिक्स के अंदर एनीथिंग विच इज गिव्स लाइट और इज एबल टू रिफ्लेक्ट द लाइट, एनीथिंग विच इज एबल टू गिव लाइट और इज एबल टू रिफ्लेक्ट लाइट इज नोन एज ऑब्जेक्ट. इसमें लिविंग और नॉन लिविंग का कोई चक्कर नहीं है. जैसे इंग्लिश में सिखाया जाता ना, ये नॉन लिविंग थिंग है, ये नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, या लिविंग थिंग है. तो लेकिन फिजिक्स में हम किसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं? एनीथिंग विच इज सोर्स ऑफ लाइट और इज एबल टू रिफ्लेक्ट लाइट, यानी ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट को हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट. आप मिरर के सामने खड़े, आप ऑब्जेक्ट हैं. इमेज क्या होता है? व्हेन टू इंसिडेंट रेज after reflection or refraction, when 2 incident rays after reflection or refraction actually meet or appear to meet, उसको हम क्या बोलते हैं? इमेज. क्या बोलते हैं उसको? इमेज. सो इमेज इज व्हाट? जैसे फॉर एग्जांपल अब मैं मिरर के सामने खड़ा हूं, मिरर के अंदर मैं दिख रहा हूं, उसको हम क्या बोलेंगे? हमारा इमेज है. लेकिन वो कौन सा इमेज है? वर्चुअल इमेज क्यों बोलेंगे उसको? मिरर के अंदर तो नहीं होगा ना मैं. आप रोड पे लेके मिरर खड़े हो, पूरी रोड दिखती है, क्या उस रोड के अंदर आप चले जाओगे? चल सकते हो आप उस मिरर के अंदर? नो, वी कैन नॉट मूव. सो दैट इज व्हाट वर्चुअल इमेज. ऐसा तो नहीं होता सुबह उठ के आप अपने घर से जब स्कूल के निकलते हो, कहीं में फेरते हो, सारा दिन उसी मिरर के अंदर नजर आते रहते हो, सारा दिन उस मिरर के अंदर रहते हो. जब तक आप वहां पर हो तब तक ही वहीं नजर आते हो. उसके बाद तो वहां से आप वहां पर आपका इमेज रहता, वो इमेज वहां तो नहीं है एक्चुअली अंदर. तो ऐसे इमेज को क्या बोलते हैं? वर्चुअल इमेज. सो व्हाट इज वर्चुअल इमेज? सो इमेज 2 टाइप के होते हैं, एक वर्चुअल इमेज एंड एक रियल इमेज. रियल इमेज के बारे में बताता हूं, लेकिन वर्चुअल इमेज थोड़ा सा और. सो इमेज इज सेड टू बी वर्चुअल व्हेन 2 रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन appear to meet. ये appear to meet का मतलब क्या होता है? ये जब मैं आपको रे डायग्राम सुनाऊंगा वहां पर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, थ्योरेटिकली भी और डायग्रामेटिकली भी. लेकिन यहां पर आपको समझना है कि जो मिरर्स के अंदर आपको इमेज नजर आते हैं, आपकी चमकती थाली है उसके अंदर आपकी शक्ल नजर आ रही है, वो कौन सा इमेज है? वर्चुअल इमेज. और वर्चुअल इमेज हम कभी भी स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते. वी कैन नॉट ऑब्टेन इट ऑन स्क्रीन. स्क्रीन का मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सिल्वर स्क्रीन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सिनेमा स्क्रीन ऑलवेज. स्क्रीन का मतलब एनी पीस ऑफ पेपर, क्लोथ, वॉल, एनी सरफेस, तो जिसके ऊपर हम इमेज ऑब्टेन कर लेते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? उस इमेज को हम क्या बोलते हैं? रियल इमेज. लेकिन जो वर्चुअल इमेज है वो कभी भी स्क्रीन पे नहीं मिल सकता. और रियल इमेज क्या होता है? व्हेन 2 रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन एक्चुअली मीट, एक्चुअली इंटरसेक्ट. जो रिफ्लेक्टेड रेज और रिफ्लेक्टेड रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन जब एक्चुअल में मीट करते हैं तो कौन सा इमेज बनता है? रियल इमेज. कौन सा एग्जांपल है हमारे सामने इसके? फोटोग्राफ. जो आपका फोटोग्राफ खिंचवा के लाते हो स्कूल में, कई बार आपने 9th रजिस्ट्रेशन के टाइम पे भी दी होगी, अभी 10th में भी आपको देनी पड़ेगी. उस जो आपकी पिक्चर्स होती हैं, उन प्रिंटेड इमेजेस होते हैं, वो सारे क्या है? रियल इमेज. इमेज ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन ऑफ द सिनेमा, that is called real image. So real image is always inverted. real image हमेशा ऐसे बनता है, ऐसे. मतलब ये अगर ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज ऐसे बनेगा, यानी मैं ऐसे खड़ा हूं तो मेरा पैर ऊपर सिर नीचे होते हैं. लेकिन कहो सर आप तो जब फोटो खिंचवा के लाते हो सीधी नजर आती है. ओ भाई, आपने फोटो ऐसे इसके ऊपर खींची, ये आपके मान लो हेड है और ये आपकी लेग्स है, फोटो ऐसे खींची,
लेकिन आप फोटो वोल्टा पकड़ लेते हो। मान लो ये पीस ऑफ पेपर है, यहाँ आपने एक एरो बना दिया ऐसे, सॉरी बना दिया ऐसे एरो। अब ये इसका इमेज कैसे बनेगा, ये उल्टा है ऐसे। लेकिन जब हम इसका प्रिंट लेके आते हैं, इसका हम पॉजिटिव लेके आते हैं, तो हमें ऐसे नजर आता है। क्या दिक्कत है ऐसे? बट रियल इमेज इज ऑलवेज inverted. Always remember, real image is always inverted. Any doubt to this? It is always inverted. यानी अगर ऑब्जेक्ट ये है तो इमेज ऐसे बनेगा। इट मे बी स्मॉलर और बिगर और ऑफ सेम साइज। लेकिन अगर ये ऑब्जेक्ट है तो ऐसे ही बनेगा इमेज इन केस वर्चुअल। सो वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट। क्लियर व्यू? कभी आपने देखा कि मिरर के सामने खड़े हो और आपका वहां शीर्षासन हो रहा हो? हाँ, देखा होगा आपने भी। यहाँ देखा जहाँ हमने एक एग्जीबिशन में गए थे, वहाँ शीशे लगे हुए थे, मिरर हंसी के गोलगप्पे, उसमें दिखता है। वो अलग अलग मिरर्स को कंबाइन करते हैं, तो वो हम समझाएंगे कैसे होता है आपको नेक्स्ट आने वाले टॉपिक्स में। सो अप टू दिस क्लियर टू यू? ऑब्जेक्ट इज क्लियर, इमेज इज क्लियर। इमेज इज सेड टू बी वर्चुअल व्हेन रिफ्लेक्टेड रेज। इमेज जब भी हम बनाएंगे वो रिफ्लेक्टेड रेज से बनाएंगे। Any doubt up to this? To make this virtual thing, virtual and real image clear, I'll go with one simple example. आप जो घरों में मिरर यूज करते हैं वो कौन सा मिरर होता है? प्लेन मिरर। अब इन मिरर्स के बारे में हमारी जनरल कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, वो आप लोगों ने भी बहुत लोगों ने की होगी, बार बार की होगी, रोज करते हुए नहीं। क्या है? सबसे पहले जब भी हम मिरर के सामने खड़े होते हैं, जब मिरर के पास जाते हैं उसको तो हेलो, वो हमारे पास आता है, उसके चांटा मारते हैं, वो हमारे चांटा मारने की कोशिश करता है। उससे प्यार से बात करते हो, आपसे प्यार से बात करता है। मैं आगे जाके आगे हाथ बढ़ाता हूँ, वो भी आगे हाथ बढ़ाता है। मतलब क्या है? अगर मान लो ये ऑब्जेक्ट है और इसका डिस्टेंस यहाँ से 25 सेंटीमीटर, तो मिरर के अंदर भी जो इमेज बनेगा, पहली बात वो वर्चुअल एंड डायरेक्ट होगा। यानी आप अगर मिरर में सीधे खड़े हो तो सीधे नजर आते हो, अगर आप मिरर के सामने उल्टे खड़े होगे तो उल्टे नजर आओगे। मिरर के अंदर इमेज हमेशा क्या बनता है? वर्चुअल एंड डायरेक्ट, पहली बात। दूसरी बात, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है हमारा और ये इमेज है हमारा। मान लो ये 25 सेंटीमीटर, तो ये भी 25 सेंटीमीटर होगा। इस डिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं यू से, इसको डिनोट करते हैं वी से। यू का मतलब होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर एंड दिस इज व्हाट इमेज डिस्टेंस, वी इज कॉल्ड इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। इन केस ऑफ प्लेन मिरर ये हमेशा सेम है, इक्वल है। क्यों? क्योंकि आप जितनी दूर मिरर से जाते हो, इमेज आपका अंदर और दूर जाता है। जितना उसके पास आते हो वो आपके पास आता है। आपको थप्पड़ लगाते हो, आपके थप्पड़ लगाता है। आपको हेलो करता है, हेलो करता है। दूसरी बात, कभी प्लेन मिरर में आपके घर पे जो मिरर लगा, कभी ऐसा तो लगता कि आपने ये पेन देखा और इतना बड़ा पेन नजर आ रहा, नहीं होता। इतना पेन है तो इतना ही नजर आएगा। बत्रा सर जितने खड़े हैं तो बत्रा सर इतना नजर आएगा, उसमें कोई छोटा बच्चा नजर नहीं आएगा। यानी जो ऑब्जेक्ट का साइज होगा, अगर मैं ऑब्जेक्ट साइज को H1 से रिप्रेजेंट करूं, इमेज साइज को H2 से रिप्रेजेंट करूं, तो दोनों का साइज हमेशा सेम होगा। किसी किसी बुक्स में इसको O और इसको I से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो दोनों का मीनिंग सेम है। V is always equal to U, H1 is always equal to H2, means image object distance is equal to image distance, ऑब्जेक्ट साइज इज इक्वल टू इमेज साइज। तीसरी बात, इमेज वहां हमेशा वर्चुअल बनेगा प्लेन मिरर से। प्लेन मिरर में कभी भी नहीं आपकी फोटो नहीं छप जाएगी अंदर। क्या मेरे सामने खड़े और आपकी फोटो छप गई और आपने घर में लगा दी, ऐसा नहीं। वो रियल इमेज नहीं है, वो क्या है? वर्चुअल इमेज। जब तक आप ऑब्जेक्ट के उस मिरर के सामने हो तब तक आपका नहीं बनेगा। और चौथी बात, आज का ना वैसे आपने बहुत बारी की होगी, पता भी होगा। आप वहां पर अपना, मेरा कौन सा हाथ है? राइट। आप अगर आप मिरर के सामने खड़े होकर राइट हैंड हिलाएंगे तो जो इमेज होगा वो लेफ्ट हैंड दिखाएगा। और जो अगर आप अब मिरर के सामने लेफ्ट हैंड हिलाओगे या लेफ्ट कान पकड़ोगे तो ऐसे लगेगा कि राइट कान पकड़ रहा है।
This phenomena is known as lateral inversion. So lateral inversion is what? It is the phenomena by which left of the object appears to be right in the image and right of the object appears to be left in the image. And in case of image is always laterally inverted. That is why आपने देखा होगा कि एम्बुलेंस में कुछ वर्ड उल्टे लिखे होते हैं. क्यों लिखे होते हैं उल्टे? ताकि मान लो अब पीछे से कोई आ रहा है और वो देखता है वर्ड, अगर वर्ड उल्टे लिखे होंगे तो समझेगा नहीं कि एम्बुलेंस आ रही है, कुछ आ रहा है. हालांकि एम्बुलेंस में हॉर्न बजता होता है, लेकिन अच्छे से पहचान भी ले और अच्छे से उसकी आवाज़ भी सुन ले. हॉर्न तो आवाज़ के लिए, लेकिन वो जो वर्ड्स उल्टे लिखे होते हैं ताकि जब वो दोबारा से मिरर इमेज बनता है, मिरर के अंदर बनता है इमेज का, तो सीधा नजर आए, आसानी से आइडेंटिफाई हो सके. Am I clear? That is why so many letters are written inverted in some of the vehicles, ताकि ड्राइवर को वो सीधे पड़े जाए. हमारी अल्फ़ाबेट्स के अंदर 26 अल्फ़ाबेट्स के अंदर आप एक काम करना, एक पेपर के ऊपर 26 अल्फ़ाबेट्स देखना, उसमें से कुछ वर्ड्स आपको मिरर के सामने उल्टे नजर आएंगे. सर देखना कौन कौन से वर्ड उल्टे नजर आते हैं. ठीक है. सो प्लेन मिरर के बारे में 4 बातें ध्यान रखनी है. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू इमेज डिस्टेंस. नंबर 2, ऑब्जेक्ट साइज इक्वल टू इमेज साइज. नंबर 3, image is always virtual and direct. And number 4, image is always laterally inverted. Thank you so much.